کل میں نے ہمارے ایک مخلص ہیں، انہیں وہ اپنا نیا مکان بنا رہے ہیں، 3 مکان بنا رہے ہیں ان کی فیملی۔ میں نے انہیں ایک عمل بتایا، آج آپ کو ہی بتا دوں، طرفت عین پہ یاد آئی بات۔ ذرا یہ عمل غور سے سنیے گا، ہر اس شخص کے لیے جو نیا مکان چاہتا ہے، نیا مکان بنا چکا ہے، نئے مکان میں رہ رہا ہے یا نیا مکان بنائے گا۔ میں نے کہا آپ نے نیا مکان بنایا ہے، ان قریب شفٹ ہونے والے ہیں، منتقل ہونے والے ہیں، اس کا کوئی حل بھی کیا؟ میں کہا سب سے پہلے اس نئے مکان میں 3 نقصانات ہیں، اور آپ نے ایک بات اکثر سنی ہوگی، ہمیں گھر راس نہیں آیا، مکان شفٹ کیا، یہ حادثہ، یہ واقعات، جانی نقصان، مالی نقصان، پریشانیاں، مشکلات، مسائل، ہمیں نہ لوگوں کی نظر کھا گئی، یا یہ فلاں فلاں، آپ نے سنا ہوگا۔ آج میں اس کا راز بتاتا ہوں، یہ ہمیشہ راز یاد رکھیے گا، اور میری یہ بات ضرور پھیلائیے گا، بتائیے گا، لوگوں کا نفع ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا۔ نیا مکان جب بھی بنتا ہے، جب بھی بنتا ہے، اور جتنا خوبصورت ہوگا، جتنا خوبصورت ہوگا، جنات کو بڑا پسند آ جاتا ہے۔ اب میں ایک صاحب نے مجھے ایک بات بتائی، وہ بات میں انہی کی زبان میں سناؤں گا، آپ وہ بات کی چاشنی بھی لے لیں، پھر میں بات مختصر کر کے بتاؤں گا۔ اماں بالا کو قرآن پڑھیں دیے، یہاں تک سمجھ آئے؟ بچوں کو قرآن پڑھاتی تھی اماں۔ تو ہم نے نیا مکان بنایا، اماں نے ہمیں بٹھا، اماں کہہ دیے بن حافظ کوئی درخت دی ساری لکڑ بھرنا، چمک بھرنا، شاخ توڑ کے لیا تازہ، اما تازہ صاف لو کے اوپر چڑھ گئی، نیت بیمار پوے، خدا خراب کر رہے، گلو سڑو، میرا گھر تک نظر یہاں، نکلو ہی تم، نکلو۔ میرے اما ایسی دیواروں کو مار رہی، ایسی ایسی۔ ہم نے کہا یہ پتا تھا اما کے پاس جنات بھی پڑھتے ہیں، آتے بھی ہیں، اما جنات کا دم بھی کرتی ہے، ہدیے کھانے وغیرہ بہت آتے تھے ان کے گھر، میں نے بھی اما کو دیکھا ہوا تھا، وہ میری نانی اما کی بہن بنی ہوئی تھی، ایک دوسرے کو ہدیے دینے لینے کرنے۔ نانی اما کی طرف سے ہدیے تھوڑے جاتے تھے، ادھر سے زیادہ جاتے تھے کہ نانی اما کی جیب سے جاتے تھے، ادھر سے ہدیے آتے تھے، تو اتنے ہوتے تھے کہ وہ تقسیم ہوتے تھے۔ تو کہ نانی اما، میری اما نے نا مارو کے ہانکتی کانپتی اما آ گئے، کہنا بس نکل گئے۔ اما کیا ہے؟ کہہ رہے نیا مکان بنایا، ان کو اچھا لگا، گزرے جا رہے تھے، اوپر جو سیڑھیوں کی بمپی تھی وہاں جا کے انہوں نے اپنا ٹھکانہ لگا دیا، مٹی لینے پہ ہاں اپنی اپنا سامان لگا رہے تھے، تو مجھے نظر آ گئے، نکال کے آئی ہیں۔ اچھا یہ ایک نہیں کئی واقعات ہیں۔ آپ کے گھر میں بہترین گھر بنا، بہترین گھر بنا، اور آپ کے گھر میں گندی کیچڑ کے 5-10 کتے، جو گرمیوں میں نا آپ نے دیکھا ہوگا نالیوں میں کتے بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ساری زبان نکال کے ہانپ رہے ہوتے ہیں، گندی نالی میں پانی گزر رہا ہوتا ہے تو ان کا جسم کچھ ٹھنڈا ہوتا ہے، وہ گندی نالی والا کتا جب اٹھ کے نا اپنے بدن کو چھاڑتا ہے تاکہ کیچڑ وغیرہ، آپ کے گھر میں کتوں کا ریوڑ گھس آئے گندے، تو گھر میں کیچڑ ہوگی یا عطر کی بارش ہوگی؟ بدبو، غلاظت، نجاست، خباثت، یہی کچھ ہوگا اور کیا ہوگا؟ جس گھر میں شیاطین آ جائے اور شیاطین کا پورا قافلہ آ جائے اور فیملی آ جائے جو کہ ہر بیت الخلاء میں ہوتی ہے، خبث اور خبائث، مذکر اور مؤنث، مائی اور جوان، ہر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں، جو جتنا بیت الخلاء کو ٹائلیں لگا دے، لگژری بنا دے، ہمیں دھوکہ ڈال دیا اس ٹائلوں نے اور شیشے نے اور کمکموں نے۔ میرے کملی والے نے فرمایا ہر بیت الخلاء میں فیملی رہتی ہے، بھائی میاں بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے نا، تو میں فیملی ایسے تو نہیں کہہ رہا، خبث اور تو سب سے پہلے تو جنات، شیاطین۔ دوسرا جو ہوتا ہے، جو روگ لگتا ہے، دوسرا جو روگ لگتا ہے وہ خوش مزدوروں اور لیبر کا روگ لگتا ہے۔ غور سے سنیے، کتابوں میں لکھا ہے اپنے دھوئیں سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو،
अगर तुमने कोई मसालादार चीजें, स्पाइसी चीजें, लजीज चीजें बनाई हैं और तुम्हारे पड़ोसी को यह कुदरत हासिल नहीं, तो उसको तकलीफ ना दो। पानी शोरबे में ज्यादा डाल दो, कुछ उसको दे दो। और किताबों में यहां तक लिखा है कि फलों के, चीजों के छिलकों से पड़ोसी को तकलीफ ना दो। अगर कोई अच्छी आला चीजें खाई हैं तो अपने पड़ोसी के घर से दूर रखो, उस बेचारे को तकलीफ होगी कि मतलब मेरी जेब में भी होता, मैं भी खाता। ये जो गरीब लेबर आती है, लेबर तो गरीब ही होगी ना, मिस्त्री मजदूर, इनकी नजर खा जाती है, इनकी नजर खा जाती है। मैंने बकरियां रखी, 8 बकरियां तो ज़बह हो गई और लेबर खा गई, 9वीं जो है आखिर हराम हो गई, और छुरी के नीचे भी नहीं आई। मैंने कहा निकालो यहां से बकरियां। 8 तो छुरी के नीचे आई और 9वीं जो है वो खुद हराम हो गई। और तीसरी और आखिरी चीज, ये मैं आपको कहता ना घर रास नहीं आया, ये मेरे पास बहुत वाकयात आते हैं। उसकी नजर होती है, लेबर की होती है। और बाज बंदे ऐसे होते हैं, अब तो साइंस इवल आई और बेड आई पे जाओ, मेरा लफ्ज लिखो सोशल मीडिया पे, नेट पे, पता नहीं कहां, फेसबुक पे, इवल आई बेड आई। अब तो पूरी दुनिया की साइंस नजरे बद पे पागल हो चुकी है। पहले कहते थे ये इनकी किस्से कहानियां हैं। अरे मेरे कमली वाले ने फरमाया, और साइंस उसकी रिसर्च को कहे सच नहीं है तो हो कैसे सकता है, हो कैसे सकता है। हजरत अली करम अल्लाह वजह के फरामीन बहुत ज्यादा नजर बद पे, हसनैन करीमैन के फरमान बहुत ज्यादा, आले रसूल असहाब रसूल के फरमान बहुत ज्यादा, वाकयात बहुत ज्यादा, तजर्बात बहुत ज्यादा। और तीसरी और आखिरी चीज उन्हें मैंने बताई कि बाज़ औक़ात हम अपने रिज़्क़ के हलाल से किसी से सामान लेते हैं और उसका रिज़्क़ मशकूक होता है, उसने कारोबार मशकूक रिज़्क़ से किया हुआ है, उससे मटेरियल ले रहे हैं। गौर से समझेगा, बारीक नुक्ता है। हमने उससे जो मटेरियल दिया वो रिस्क मशकूक है उसका। इसकी दलील मैं देता हूं आपको। मैं एक बात कहा करता हूं, आपने शायद सुनी होगी कि अगर हम महसूस करता हूं, मैं महसूस करता हूं मेरा रिस्क मशकूक है, तो उस मशकूक रिस्क से कभी रोजे ना रखना। मैं आपको अक्सर अर्ज करता हूं, किसी ऐसे बंदे से जिसका रिस्क तैयब ताहिर हलाल है, उससे उधार ले ले, ठीक है, उससे उधार लेकर जिसका रिस्क तैयब ताहिर हलाल है, उससे रोजे रख और अपने पैसों में से वो उधार चुका दे। रिस्क का असर होता है। एक बुजुर्ग कहते हैं, मैंने दावत खाई, 1 महीने तक मेरे जी में आया कि मैं कोई गुनाह बदकारी करूं, सिर्फ एक दावत खाई थी। वाकयात ये 3 अवामिल हैं, 3 फैक्टर्स हैं बड़े, जो घर के अंदर कहते हैं कि घर रास नहीं आया। इसका हल करना है सदकात, खैरात, आमाल, तस्बीहात और जिक्र के जरिए। इसका हल करना है सदकात, खैरात, आमाल, जिक्र और तस्बीहात। इसका हल करना है। अब ये सुनते जाइए, गौर से सुनिएगा, तवज्जो से। नए घर में जब भी दाखिल हो, सबसे पहले तो ये सोचें कि मैं घर किस रिस्क से बना रहा। याद रखिएगा, मशकूक रिस्क। या आपने ऐसा मौजू छेड़ दिया कि इस मौजू को मुझे कुछ बताना पड़ेगा। सबसे पहले तो यह ज़हन नशीन रखिएगा, रिस्क मशकूक कभी जिंदगी और नस्लों में चैन सुकून नहीं दे सकता, कभी नहीं दे सकता। वो कैसे होगा, उसके मेरे पास वाकयात। मैं एक छोटा सा सिर्फ वाकया सुनाता हूं। मैंने कई वाकये देखे। पता चला कि बेटा फौत हो गया खुदकुशी में। गर्मी थी, घर था बड़ा सारा, यानी इधर भी घर के लॉन था, बागीचा था, इधर भी बागीचा था, बड़ा बेहतरीन घर बना हुआ था। उस वक्त महसूस हो रहा था ये घर को बने 35-40 साल हो गए। चारपाई जब पड़ी थी तो हमारे होते हुए धूप आ गई, तो चारपाई को मैंने घसीटा और एक बेल थी बड़ी खूबसूरत, उसके नीचे ले गए। ऐसे बंदा रो रहा था। वो अपने इलाके का मजिस्ट्रेट था,
मैंने उसकी मजेस्टिटी देखी है। भट्ठे वाले को हुक्म था कि इतनी ईंटें पहुंचानी है वरना भट्ठा किसी शिकायत की वजह से सील हो जाएगा। सीमेंट वाले के जिम्मे थे इतनी सीमेंट की बोरियां पहुंचानी है वरना तू 2 नंबर सीमेंट बेच रहा, तुझ पे ऑब्जेक्शन लग जाएगा। रेत वाले, ईंट वाले, हर मटेरियल वाले के जिम्मे था कि तूने पहुंचाना है बेहतरीन मकान बनाओ, बेहतरीन मकान बनाओ। उस घर में रहा और कभी सुख का सांस न ले सका। बीवी मर गई, बेटा अड़ गया कि मैंने मां को घर में दफन करना है। जो घर के पिछली तरफ का बागीचा था वहां मां की कब्र थी और खुदकुशी मार के कहने लगा मुझे मां के कदमों में दफन करना है। 2 कब्रें घर में बनी हुई थी। बैठा हुआ था, रिटायर, मर गया और फिर उसका कोई वारिस नहीं था। वहां पता चला उस शहर में कि हमारे मुर्शिद आए हैं। कुछ लोगों को भागे भाग आए। एक बाबा आया रिटायर, तो मैंने कहा बाबा जी मुर्शिद बस मेरे घर चले, दुआ करते, खाना खा ले। मैंने कहा किस लिए? मेरी दुआएं होंगी। मैंने कहा एक चीज पे दुआ दूंगा कि इस बाबे की आपने खिदमत करनी है। तो खुद भी बाबा है, इसकी खिदमत करनी है और उस बाबे की मौत तक वो बुजुर्ग बाबा, वो भी जिंदा है, उसकी खिदमत करता रहा और वो दुआएं देता रहा। मेरे अपने छोड़ गए कि हकीम साहब तू आया और किसी को खिदमत पे छोड़ गया। फिर मेरी चारपाई धूप में पड़ी होती थी, मेरे अंदर सकत ही खत्म हो गई। एक बुढ़ापे ने मारा, दूसरा गमों ने मारा। बड़ा लंबा वाक्य है। सबसे पहले रिस्क हलाल, नस्लों के लिए राहत है। और दूसरी चीज हमारे एक जानने वाले हैं, उनकी जिंदगी में मसाइल ही मसाइल है, मुश्किलात ही मुश्किलात है, गम ही गम है। उस गम को वजह, इलेक्ट्रिशियन आया, थोड़ा सा काम किया, उसका हाँ तुझे पैसे दूंगा। बिजली वाले का, प्लम्बरी वाले का, मुरम्मत वाले का कोई काम है, धोबी का, फला का फला, उसने कहा पैसे दूंगा। और अगर उसने पैसों का इसरार किया तो उसको धमकाया, डराया। छोटे छोटे लोगों के पैसे खाता गया, खाता गया, खाता गया, नस्लों में गुर्बत, तंगदस्ती में खेल लिया। अब मुझसे अमाल पूछते हैं और रिस्क वो हुआ जो काला हुआ, धन काला हुआ और जिसमें गरीबों की आही हुई। तो मैं कितने अमाल करके उस घर में कैसे सुकून पाएगा? मुझे बता दो सर। इसकी मिसाल पता क्या है? खिंजीर को बड़े खुशो खुशू से लिटा के कहता है बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, तो खिंजीर हलाल हो जाएगा। कुत्ते को लिटा के तो कहे बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, छुरी भी तेज हो, किबला रुख भी हो, बावजू भी हो और तकबीर भी पूरी पड़े, तो कुत्ता हलाल हो जाएगा? खिंजीर हलाल हो जाएगा? नहीं होगा। कोई बात नहीं, घर छोटा है, कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। इन चीजों के ख्याल करके अब अमल बता रहा हूं। घर में 81 दफा सूरत यासीन, जब नए घर में दाखिल हो 81 दफा सूरत यासीन मिल के बैठ के खुद पढ़ें, किराए के बंदे जमा ना करें। 81 दफा सूरत यासीन, अव्वल आखिर 7 बार दरूद पाक, हर दफा बिस्मिल्लाह रहमान, मिल के पढ़े। एक दूसरा, हर कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी मिल के पढ़ ले। कोई उस कोने में घर का बंदा पढ़ ले, कोई उस कोने में, घर के चारों कोने में 11 दफा आयतल कुर्सी और 1 दफा घर के दरमियान में 11 दफा आयतल कुर्सी, 2। और घर के चारों कोने में 3-3 दफा अजान, 3-3 दफा अजान। ये जो अजान हम नमाज के लिए कहते हैं, पढ़ते हैं, एक है अजान पढ़ना, एक है अजान देना। अजान देने के लिए उंगलियों में उंगलियां ठूसनी पड़ती हैं, किबला रुख भी है, मस्जिद है, मिंबर है या चबूतरा है, नहीं, अजान पढ़ना वजीफे की शक्ल में। तो 3 दफा अजान चारों कोनों में, कितना हो गया ये है? 3 अमल हो गए। मैंने 5 अमल बता दिए। और चौथा ये है कि वहां जाके 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन या 11 दिन इतना पकाएं कि लोगों को खिलाएं, और खास तौर पे उन लोगों को जिनको इतना अच्छा कोई नहीं खिलाता। कितने अमल हो गए? 4। और आखिरी अमल यह है कि घर को मेहमान की नीयत से बनाना है।
शेख हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, माशाल्लाह बड़ा अच्छा घर बना है, किस नियत से? हजरत बच्चे बड़े हो गए, घर की जरूरियात भी है सारा। फरमाया तो बड़ा छोटा व्यापारी निकला, तो दिल्ली का पंजाबी सौदागरान का ताजर था, उसने घर बनाया, हजरत को बुलाया तो उन्होंने छोटा घर बनाया। अरे तू ये नियत कर ले कि ये मैं घर मेहमानों की नियत से बना रहा, और मेहमान आएंगे उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनको बिठाऊंगा, बस। और फिर फरमाया देखो, जैसे कोई बंदा रोशनदान रखे, और क्यों रखा? रोशनी के लिए, हवा के लिए। अरे नहीं, इस नियत से रख के अजान की आवाज आएगी। जब तक रोशनदान रहेगा तेरे लिए सवाब नेकियां लिखी रहेंगी। फिर अगली बात जो फरमाई वो बड़ी बारीक बात है, हसास बात है, वो सुन लेना। फरमाया बदतरीन पैसा वो है जो मटेरियल और बिल्डिंग में खर्च हो। जब तू मेहमान की नियत कर लेगा, वो तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा। समझ गए नुक्ता बारीक? अब वो तेरा पैसा बेहतरीन बन जाएगा। और तूने अगर मेहमान की नियत ना की और मेहमान की खिदमत का जज्बा ना लिया, वो तो बदतरीन पैसा है, अल्लाह के यहां नापसंदीदा है। जो मेरे रब के यहां नापसंदीदा, उसमें सुकून आ सकता है, चैन आ सकता है, राहत मिल सकती है, खैर मिल सकती है, बरकत मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? उसमें तो बरकत मिल ही नहीं सकती। मेहमान की नियत कर, मेहमान की नियत कर। ये 5 चीजें हैं नए मकान बनाने के लिए, नफामंद है। और 2 एहतियातें, एक आह और एक रिस्क हराम। 5 अमल, 2 एहतियातें, ये नया मकान बनाने के लिए मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की।